हेलो स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द rate constant. Now let us consider any reaction. Suppose the A B gives product. Now if I have to write a rate equation for this reaction according to rate law, rate is equal to K concentration of A, concentration of B, A and B. Here K is called rate constant. Now how do I define rate constant? If the molar concentration of reactants, molar concentration of these reactants are unity, it means molar concentration of reactant A is equal to molar concentration of reactant B is equal to 1. Then what will happen? Rate is equal to K. Now rate constant is the rate of reaction when the molar concentration of reactants are unity. और कल हम लोगों ने कुछ यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट की बात किया था कि किसके यूनिट्स क्या हो सकते हैं. तो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, तो इसके लिए हमने कल बात करा था. एक जनरल इक्वेशन दिया था मैंने, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 minus n time inverse. For n is equal to 0, it is a mole liter inverse time inverse. या हम टाइम सेकेंड मिनट ईयर मंथ कुछ भी ले सकते हैं, दैट्स वाई मैं सिर्फ टाइम लिखा हूँ. फॉर n is equal to 1, it is time inverse only. For n is equal to 2, it's mole inverse liter and time inverse. So depending upon n, we can write units for any order of reaction. Now what is the difference between rate of reaction and rate constant? Difference between rate of reaction and rate constant. First of all, define rate of a reaction. Rate of reaction means change in concentration per unit time. Change in concentration of reactant per unit time or product per unit time. Change in concentration per unit time. क्योंकि concentration reactant का भी वेरी चेंज करता है और प्रोडक्ट का भी चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. What is rate constant? Rate constant is equal to the rate of reaction when the molar concentration of the reactants is unity. भाई जब यूनिटी हो जाता है रेट कांस्टेंट, जब मोलर कंसंट्रेशन, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन का तो वो रेट कांस्टेंट हो जाता है. रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या हो सकता है? यूनिट मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स. और यहाँ यूनिट डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. Order of reaction. Okay, now we will understand what is elementary reaction. Elementary reaction is a reaction which takes place in one step. This in one step.
ऐसे रिएक्शंस जो वन स्टेप में कंप्लीट होते हैं उन रिएक्शंस को हम एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं. आफ्टर दैट व्हाट इज complex reaction which take place in number of steps, which take place in number of steps, which takes place in number of steps, and each step is complex reaction, and each step is elementary reaction. Each step is elementary reaction. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एक अगर सिंगल स्टेप में कोई रिएक्शन होता है तो हम उसे एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं. अगर कोई रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में होता है तो उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं. और उसका हर एक स्टेप जो होता है वो एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाता है. नाउ let us understand the mechanism of reaction. What is rate of reaction? What are the proposed step in which a particular reaction take place? इसका मतलब ये कि कोई भी रिएक्शन कितने स्टेप में हो सकता है, that is called our mechanism of reaction. What are the proposed step in which a particular reaction take place is called. Now let us consider a reaction 2N2O5 giving 4NO2 plus O2. Now what is the experimental determined rate law? According to experimentally determined rate law, rate is equal to K, that is rate constant, into concentration of reactant N2O5. It is given. So according to rate law, my reaction, it means that reaction is depend on only 1 mole of N2O5. यहाँ तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है. अगर यहाँ पे 2 होता, ये 2 होता तो ये 2 मोल पे डिपेंड कर रहा होता. लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये रिएक्शन सिर्फ 1 मोल पे डिपेंड कर रहा है. सो इफ वी हैव टू राइट द मैकेनिज्म, वी विल से स्टेप 1. तो स्टेप 1 में क्या हो रहा है, N2O5 सिर्फ 1 मोल रिएक्ट कर रहा है. N215 गिव्स NO2 प्लस NO3. And suppose this reaction is called slow reaction. Why it is slow reaction? क्योंकि ये slow reaction ही rate determining step होता है. Now the slowest step in the reaction is rate determining step. Slowest step को क्या बोलते हैं, rate determining step. rate determining step कौन सा होता है, स्लोएस्ट स्टेप. सपोज दैट मेरा कोई रिएक्शन है 3 स्टेप में हो रहा है, 4 स्टेप में हो रहा है, और हर रिएक्शन का स्टेप पता है एक्सपेरिमेंटली कि ये स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है. जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही स्टेप मेरा बताएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है. जैसे ये स्लोएस्ट स्टेप है, ये रेट डिटरमाइन करेगा स्टेप. तो यहाँ रेट क्या था, कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन पे हमने यहाँ पावर 1 देखा. इसका मतलब कि ये यहाँ सिर्फ इसका 1 मोल ही रिएक्ट कर रहा है स्लो वाले स्टेप में. ठीक है. जब हम रेट लिखेंगे तो सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप को ही कंसीडर करेंगे. जब भी रेट लिखना होगा तो स्लोएस्ट स्टेप को देखेंगे, इसके रिएक्टेंट में देखेंगे कि कितना रेट रिएक्टेंट में कितना है, फिर वही यहाँ पर लिख देंगे. नाउ व्हाट इन स्टेप 2. Step 2 would be the other mole of N2O2. मीन्स यहाँ पे हमारा जो 1 मोल तो N2O5 का यूज़ हो चुका है. दूसरा मोल जो है N2O5 का वो अब हम लिखेंगे. तो N2O5 जो मेरा बचा हुआ था वो रिएक्ट किया NO3 से, तो इट गिव्स 3NO2 प्लस O2.
Now when you add these two equation, you will get 2 and it's 1. From 1 and 2, adding 1 and 2, तो आपको क्या मिलेगा? 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, right? That's why this is the mechanism of reaction. इसे हम बोलते हैं mechanism of reaction. mechanism of reaction steps होता है जिनमें वो reaction हुआ होता है. अगली बात आती है हमारी, एक और टाइप का क्वेश्चन हो सकता है. नाउ सपोज यू आर गिविंग मैकेनिज्म एंड यू हैव टू राइट द रेट लॉ. यहाँ पर क्या था, रेट लॉ दिया हुआ था, आपको मैकेनिज्म लिखना था. अब मैं बात क्या कर रहा हूँ कि आपको क्या दिया हुआ है, मैकेनिज्म दिया हुआ, एंड यू हैव टू राइट द रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन. तो व्हाट टू डू, सपोज आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज 2NO2 plus F2 giving 2NO2F. ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसके मैकेनिज्म दिए हुए हैं. मैकेनिज्म में स्टेप वन इज NO2 plus F2, NO2F plus F, that is slow, right? Step 2 is NO2 plus F, फास्ट रिएक्ट कर रहा है, NO2 एंड F बना रहा है. तो नाउ व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन. आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, तो रेट इज इक्वल टू K रेट कांस्टेंट. अब यहाँ देखेंगे कि ये वाला स्टेप मेरा स्लो स्टेप है, तो मैं फास्ट वाले को कंसिडर ही नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ स्लो वाले से मतलब है, क्योंकि रेट लॉ में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप सिर्फ स्लो वाला स्टेप होता है, तो मैं स्लो वाले स्टेप को लेता हूँ. यहाँ रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, तो NO2 है और F2 है. रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, NO2 एंड F2. तो ये हो जाएगा मेरा रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन. नाउ अगर मुझे यहीं पे कैलकुलेट करना हो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, अब इनके जो पावर होते हैं उनका सम हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा जो भी था. तो ये 1 + 1 = 2. तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन का रेट लिख सकते हैं. मैकेनिज्म आपको, हालांकि ये एक्सपेरिमेंटल है, तो कहीं भी आपको ये नहीं देगा कि डायरेक्टली कि कोई इक्वेशन दे दिया, ये इक्वेशन दे दिया और इस पर और कोई इन्फॉर्मेशन दिए बगैर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन. तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, और एक्सपेरिमेंटल देने के लिए या तो आपको ये डिटेल्स दिए होंगे कि मैकेनिज्म है, इसमें ये स्टेप स्लो है, तो आप स्लो वाले स्टेप के बिहाफ पे बेसिस पे आप बता सकते हैं कि उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है. ठीक है, तो आज हमने इतनी बातें करी. रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल है, जो कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B. ये अपना A और B ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट करता है. ठीक है, तो अगर मुझे रेट कैलकुलेट करना, व्हाट इज रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट तभी कैलकुलेट हो सकता है जब मेरा मोलर कंसंट्रेशन A और B यानी रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन 1 हो. मोलर कंसंट्रेशन को 1 करते ही मेरा रेट इज इक्वल टू K हो गया. अब हम डिफाइन कर पाएँ कि रेट क्या होता है. ठीक है, इसके बाद हमने बताया तरीका कि आप, ये एक जनरल इक्वेशन है, इस जनरल इक्वेशन के थ्रू आप कितने भी ऑर्डर का रिएक्शन दिया हो उस रिएक्शन की यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो एग्ज़ाम में क्या आता है, एग्ज़ाम में एक इक्वेशन दिया होता है, आपको बताना होता है कि इक्वेशन किस ऑर्डर का है और इस ऑर्डर का है, तो इसके लिए यूनिट क्या होता है. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. ये टोटल 5 मार्क्स का चैप्टर है. 5 मार्क्स में 3 मार्क्स और 2 मार्क्स. 3 मार्क्स तो आपके न्यूमेरिकल के होते हैं, 2 मार्क्स इस टाइप के थ्योरी के हो जाते हैं. दूसरा हमने रेट डिफाइन किया, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बारे में बात किया. तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रेट कांस्टेंट. इज रेट ऑफ रिएक्शन. एंड रेट कांस्टेंट क्या होता है, जब हमारा मोलर कंसंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट्स के यूनिट हो जाएगा तो हमारा
रेट कांस्टेंट हो जाएगा। यूनिट रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है, क्योंकि मोल पर यूनिट टाइम होता है, तो ये मोल का ही हो गया मोलर, और ये टाइम के लिए हो गया। रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट डिपेंड करता है कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है। अगर जीरो ऑर्डर का है तो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो सिर्फ टाइम इनवर्स, अगर सेकेंड ऑर्डर का है तो मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। नाउ एलिमेंट्री रिएक्शन, हमने बोला कि कोई भी रिएक्शन अगर एक स्टेप में हो जाता है तो उसे हम एलिमेंट्री कहते हैं, अगर वो रिएक्शन मोर देन वन स्टेप लेता है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाता है। मैकेनिज्म पे हमने क्वेश्चन करा, क्योंकि ये मैकेनिज्म मेरा ये रेट इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका मैकेनिज्म कैसे लिख सकते हैं। इस रेट इक्वेशन से हमने देखा कि रेट जो मेरा है रिएक्शन का वो यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन 1 है, यानी इस पूरे रिएक्शन में 2 मोल पे डिपेंड नहीं करता, वो 1 मोल पे डिपेंड करता है। तो 1 मोल का रिएक्शन मेरा ये हो गया, और ये स्लो रिएक्शन है क्योंकि यही रेट डिसाइड किया था, रेट के अकॉर्डिंग हमने ये इक्वेशन लिखा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन जो सेकंड वाला मोल इसका बच जाता है उसके हिसाब से ये रिएक्शन हुआ। थैंक्स फॉर टुडे।